Good morning, students. So let's complete this topic of light reflection and refraction. Why we took so much amount of time to complete this chapter? Because this chapter is pretty important for CBSE board as well as guys for all the other boards. Along with that, in practical life also it is very important, and that's the reason why this chapter took a long amount of time to complete. Pardon me. It is going to take around one more lecture, I think 2 more lectures. One more lecture to complete all those fringe topics like twinkling of stars, advanced sunrise, delayed sunset, refraction, human eye, and all those particular parts, and along with that, of course, the numerical problems as well. So it is going to take quite a while. But remember, especially the CBSE guys, that when we are going to say that we are going to complete this chapter, इसी चैप्टर के अंदर ह्यूमन आई भी है. So technically we will be completing 2 chapters. That is light reflection and refraction and human eye. तो इसके बाद में करीबन 2 या 3 lectures और लगेंगे to complete human eye. Along with that, the numericals of this chapter. So pretty important chapter, guys. Now, okay, guys, one more topic. Actually, मैं काफी दिन से मेरे को अभी just ध्यान आया. The word electron affinity. What do you mean by the word electron affinity? ये इसका topic नहीं है. Electron affinity means the energy required to make a neutral atom convert into an anion. Ionization enthalpy का मतलब क्या था? जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, मतलब कितनी एनर्जी निकलेगी बाहर जब आप किसी भी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को चोरी करके बाहर लेके जा रहे हो, और यू आर गोइंग टू स्टील दैट इलेक्ट्रॉन, राइट, फ्रॉम द ऑफ कोर्स द लूजेस्ट मोस्ट shell or the outermost shell of the loosest most electron of an gaseous atom. Electron affinity में exactly उल्टा होता है. आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो. अब प्रॉब्लम ये है उसके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब आप इसको डालना भी चाहते हो तो वो चाहता है एब्जॉर्ब करना, बट ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? उसको रिपेल कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मत आओ अंदर. सो कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. सो ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर आपको एनर्जी मिलती है क्योंकि वो एनर्जी बाहर निकल रही होगी, बट ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर वो एनर्जी आप अंदर डालना चाह रहे हो टू मेक श्योर कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाए. नाउ रिमेंबर, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड व्हाइल क्लोरीन हैज गॉट द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ध्यान रखना, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, while chlorine highest electron affinity के साथ में होता है. But then the question, sir, क्लोरीन के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होती है? बिकॉज क्लोरीन के आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो वंस आप एक इलेक्ट्रॉन को फोर्सिफुली अंदर डालने की कोशिश करोगे, एंड देन दिस पर्टिकुलर atom or consisting of electrons would not allow this electron to come inside so smoothly, and that's the reason why the repulsion is going to be huge. So that's the reason why chlorine is going to be having far more higher electron affinity as compared to all the other elements. So hopefully the electron affinity should be cleared by now. तब भी नहीं हो तो फिर से बता देना. Now let's talk about the refraction and image formation by lenses, and let's complete what do you mean by power of the lens once again. What do you mean by magnification? What is lens maker formula? What is convex lens? Objects, images, a lot of things. So let's start one by one. First part, convex lens. Please remember, convex lens is a magnifying lens. Convex lens is a magnifying lens. तो ये हर चीज को बड़ा कर देगा. Magnify और magnify. While concave lens is a diverging lens. So please understand, while convex lens is a magnifying lens, concave lens is a diverging lens. Convex mirror diverging mirror होता है, while concave mirror converging mirror होता है. तो आप किसी भी एक चीज को लर्न कर लो. नाउ लेंसेज वो याद है, वो जो काफ़ी बार आपने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा. आप सनलाइट में खड़े होते हो, धूप में खड़े होते हो, एंड देन आपने उस लेंस को चेंज किया होगा, एंड पीछे के तरफ में एक डॉट बन जाता है ना, उससे काफ़ी सारे पेपर्स बर्न हो जाते हैं, धुआं निकलने लगता है, ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाता है, लीव्स में आग लग जाती है. सो दैट विल बी विच काइंड ऑफ लेंस?
कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज वो मैग्नीफाई करते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्केव लेंस होगा वो डाइवर्जिंग लेंस होगा। सो कॉन्वेक्स लेंस आपके हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी यूज्ड इन माइक्रोस्कोप एज वेल एज इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर भी आप दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो और माइक्रोस्कोप के भी अंदर आप दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो। बट फिर सर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सेम होते हैं? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, बट ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू यूज द सेम lenses altogether, of course with different aperture and different focal length. Let's understand this and let's understand a trick also. If you have seen the movie The Pirates of the Caribbean, यदि आपने नाम सुना हो या मूवी देखी हो या कभी भी आपको जनरली यदि याद हो, so Pirate of the Caribbean में there is this character known as the Jack Sparrow. Okay, now this particular guy has got this thing that is known as a telescope, तो वो देखता रहता है, उससे आपको ध्यान आ जाएगा। अदरवाइज there's another company known as Watch Glass which actually makes this उनका एनिमेशन फिल्म के अंदर या उनके फिल्म्स में स्टार्टिंग में रहता है, बट एनीवे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। पुराना वाला यदि आप टेलीस्कोप यदि देखोगे या यदि आपने हिंदी मूवीज देखी होंगी तो if you have seen the movie बाहुबली, that's the best example of optical bench how they are using in बाहुबली 2 now। सो उसके अंदर जो दो लेंसेज होते हैं, तो यदि मैं जैक स्पैरो वाले पार्ट पे आता हूँ, सो ही हैज गॉट दिस टेलीस्कोप जिसका आई के पास में जो पीस होता है वो छोटा होता है और जो दूर की तरफ में होता है वो चीज क्या होगा, लेंस बड़ा होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द लेंस विच इज नियर टू हिज आई इज नोन एज आई पीस एंड द लेंस विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट की तरफ में देख रहे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। So please understand, microscope and telescope both are devices used to magnify things and दोनों के अंदर एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक आई पीस होगा। So यदि आप टेलीस्कोप की बात कर रहे हो तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका एपर्चर बड़ा होता है, उसका डायमीटर बड़ा होता है। ऑन द अदर हैंड जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कैसा होगा, छोटा। ओके, टेलीस्कोप के अंदर जो आई के पास में होता है वो हमेशा छोटा होता है, स्मॉल, सो इट इज गॉट अ स्मॉल एपर्चर, व्हाइल इन द माइक्रोस्कोप यही जो आई के पास में होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है एज कंपेयर टू नीचे वाले लेंस। सो ऑलवेज रिमेंबर, माइक्रोस्कोप को कभी भी डिम लाइट के अंदर नहीं देखना चाहिए क्योंकि वैसे भी आपको इमेजेस दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज जो चीज या जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में है वो इतना छोटा एपर्चर का होता है कि लाइट यदि नहीं होगी तो आपको नीचे ऑब्जेक्ट या स्लाइड दिखाई ही नहीं देगी, राइट। सो इट हैज टू बी प्रॉपर्ली lit up. So whenever somebody says which are the kind of lenses which is being used in telescope and microscope, convex lens, only convex lens. ऑब्जेक्ट के पास में कौन सा लेंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव, वो कौन सा होगा लेंस, कॉन्वेक्स। आई के पास में जो लेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, आई पीस, वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। टेलीस्कोप में विच वन इज बिगर, आई पीस और ऑब्जेक्टिव, कॉमन सेंस है, ऑब्जेक्टिव इज बिगर। ओके, वाइल इन माइक्रोस्कोप एग्जैक्टली उल्टा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर। टेलीस्कोप के अंदर आई पीस इज स्मॉलर वाइल माइक्रोस्कोप के अंदर आई पीस इज बिगर। सो एग्जैक्टली उल्टा है, कोई भी एक चीज को लर्न कर लोगे पूरा आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव। सो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग लेंसेज and so on and so forth. Concave lens कहां पर यूज होगा, डाइवर्जिंग के अंदर। Convex lens is being shown something like this. This is a convex lens, while concave lens would be something like this. This would be a concave lens. So this is convex, magnifying, concave, the diverging. Now you need to tell me in the comment section, guys, what do you think our eyes are? Of course they are having a crystalline lens altogether, but can you please tell me which kind of lens do you think it is? Whether it is bulged outwards, so it is convex, or whether it is bulged inwards, so it is concave. आपको क्या लगता है कौन सा होगा, guys? Please do write in the comment section, because I have got very bad memory and I just don't remember. I think it's mirror. Forget it. Okay. Anyway, so I've given you a hint. It's a mirror. Is it a mirror?
तो ये एज के साथ में ये प्रॉब्लम बड़ी आती है। एनीवे खैर, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ एंड देन आगे बढ़ के देन मैं आपको ये वाला पूरा का पूरा पार्ट बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम्स गाइस बहुत सिंपल है। नाउ प्लीज लिसन टू दिस लेक्चर वेरी वेरी केयरफुली एंड बिलीव मी, आप बस एक बार एनसीईआरटी या इन्फ्लुएंस की बुक जो आपको मिलने वाली होंगी वेरी सून, सो आप जब उन वाले बुक्स पे देखोगे तो आई थिंक डायग्राम्स विल बी मोर देन क्रिस्पी क्लियर गाइस। वेरी सिंपल, convex lens is always made like this, right? ये मेरा डायग्राम है गाइस, और समझ जाओ कितना शानदार होने वाला है। बीच में से आप एक लाइन को ऐसे डॉट 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 करके सेंटर से सेंटर ज्वाइन कर देना, राइट? इस पर्टिकुलर लेंस का जो भी एग्जैक्टली मिडिल सेक्शन होगा, दिस विल बी नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर O। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओके? सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इफ दिस इज कॉन्वेक्स लेंस? वापस से वही वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर जैसे अपन ने जब मिरर पढ़ा था, तो मिरर के अंदर एक साइड तो ब्लॉक थी आपके पास में। अब जब मिरर में आपके पास में एक साइड ब्लॉक थी, तो कॉमन सेंस लेंस में तो दोनों साइड ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, तो इसमें कितने फोकस बनेंगे? सो देयर आर गोइंग टू बी टू फोकसेस, वन ऑन द लेफ्ट विच इज नोन एज F1, अनदर ऑन द राइट विच इज नोन एज F2। सो लेट्स सी दिस। आपको मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन जाती है समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स मेक दिस। सबसे पहले आपको क्या लगता है क्या आता है? F आता है कि C आता है गाइस? सो लेट्स राइट। सो मैंने यहाँ पे बना दिया से फोकस। वाई? बिकॉज यदि आपको याद होगा F शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? R/2 और 2F should be equals to R. So R is always going to be twice of focus. So R बड़ा होगा, तो जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पर लिया हुआ है उतना ही डिस्टेंस आगे लेना, and that's going to be the optical center C. लेफ्ट हैंड साइड में आप बना देना F1, यहाँ बना देना C1. So this is focus F1, this is C1. I'll tell you why. Now again आप इस तरफ में आते हो। अब जब आप इस तरफ में आओगे, ये भी कॉन्वेक्स है, तो कॉमन सेंस यहाँ पर पहले आपके पास में क्या आ जाएगा? अगेन F2, एंड जितना डिस्टेंस आपने O से यहाँ पर लिया उतना ही डिस्टेंस यहाँ लोगे, तो यहाँ पर बन जाएगा C2। Now sir, why are there two F1s and two C2s while in mirror there was only F? मिरर में एक साइड, जब अपने आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस जब अपन ने बनाया था, so it was something like this. That means this particular side is already polished, so none of the light can actually cross this part, right? So that's the reason why image सारे के सारे यही बन रहे थे, and इसीलिए हम लोगों ने केवल एक ही फोकस और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया था। बट यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। What do you mean by light रिफ्रैक्ट हो रही है? इसका मतलब जब लाइट यहाँ पे पड़ेगा तो बेंड हो जाएगा, because the medium is changing. Okay, now let's understand this. So let's take the first case, say at infinity. जो आपने सेम डायग्राम्स पहले बनाए थे वही ध्यान रखना, at infinity. So इसका मतलब है जो लाइट रेज आएंगे वो हमेशा पैरेलल आ रहे होंगे। As soon as they are going to enter the medium, आपको याद होगा whenever the light is going to go from rarer medium towards the denser medium, it is going to bend towards the normal. तो ये यहां पर यदि आपने 90 डिग्री करोगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइन पैरेलल होती है तो वो हमेशा कहां पर बनेगी? फोकस पर। सो दे आर गोइंग टू रिफ्रैक्ट और बेंड एंड दे आर गोइंग टू कम समथिंग ओवर हियर। So this is going to be the first case for the part of convex lens. So if the position of the object is at infinity, the position of the image is at focus F2. इस तरफ में भूल से भी पहले यहाँ पर C2 मत बना देना कि C1 F1 फिर C2 F2। लेंस के पहले इमीडिएट यदि आप लेफ्ट से देखोगे तो पहले F1 फिर C1, राइट से देखोगे तो भी पहले F2 एंड देन C2। ओके, the size is highly diminished, same in the case of the mirror, it is highly diminished, and of course the point size image जो आप burn करते हो, that's a point size image of the sun. करेक्ट नाउ? सो ये हो चुका। अब आते हैं नेक्स्ट वाले केस पे, बियॉन्ड C1। याद है अपन ने मिरर में भी सेम केस लिया था, इन्फिनिटी के बाद में हम कहाँ आए थे? C1 और इन्फिनिटी के बीच में। फिर कहाँ पर आएंगे? C1 पे।
फिर कहां पे आएंगे, C1 और F1 के बीच में, फिर अगेन ऑन F1, देन अगेन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एंड दैट्स ऑल. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट डायग्राम. सो मैंने इसको किया रब, इसको भी किया रब, इसको भी किया रब. ओके, नाउ बियॉन्ड C1 मीन्स इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, C1 के कहीं इधर पे. सो ये मैंने बना दिया से A B, राइट. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, तो अब की बार में क्या होगा, ये जो इधर से जो इमेज जाएगी, अभी तक आपका फोकस पे था, अभी कहां चला जाएगा, इमेज शिफ्ट हो जाएगी कहां, बिटवीन F2 एंड C2. सो आपका बनाने का वही तरीका रहेगा, सेम लाइन एग्जैक्टली पैरेलल. ये पैरेलल रे कहां पर कन्वर्ज करेगा आपका, ऑलवेज F2 पर, एंड देन कुछ जाएगा ये नीचे की तरफ में, समथिंग लाइक दिस. वाइल इस तरफ से एक और बना देना जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ आपका एक रे जाएगा. ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से. जब भी कभी कोई भी रे, if it is going to pass or traverse through optical center, please remember it is never ever going to deviate. कुछ rules ध्यान रखोगे तो it's very simple. Whenever you are going to make a ray parallel to the principal axis, it's always going to go to the focus. Whenever you are going to pass any ray from the optical center, it is going to go undeflected. So ये ray exactly ऐसे में कुछ जाएगा. ये बन गया आपका image. Can you see this? So that's all. Now how do you think it is? It is what, virtual or real? So it is real image. God knows, let's see. So beyond C1, image कहाँ बनेगा, between F2 and C2, between F2 and C2. It is diminished and it is real and inverted. But sir, why are you saying that the word it is real and inverted? Because this time this image is actually onto this side. यहाँ पर यदि आपने स्क्रीन को रखा तो ऑफ कोर्स इमेज किस पर बनेगा, तो स्क्रीन पे बनेगा. वर्चुअल कब होगा, करेक्ट. सो दिस पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि यहाँ पर लेंस की बात कर रहे हो, सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. क्योंकि देखो ये एरो उल्टा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था ऐसे में, बट यहाँ पर इमेज ऐसे हो जाएगी. तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ कोर्स डिमिनिश्ड. Let's move on to the next case. Next case I am not making you the diagrams, you can see it from the part. It's very simple. At C1, now if the object is exactly at C1 like this, अब की बार एक रे फिर से क्या करोगे, एक रे पैरेलल बनाओगे एंड उसको F1 पे जोड़ देना, एंड वापस से इस बार जब आपने ये ऑब्जेक्ट को C1 पे रखा होगा, इस बार एक रे को F से पास करते हुए बनाना. सो वो F से जब पास करेगा तो वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली कहां पर मैच होंगे, C2 पे. सो दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1, द इमेज इज गोइंग टू बी मेड एग्जैक्टली इन्वर्टेड ऑन C2. At C1, at C2, same size image but inverted, and of course real, क्योंकि onto this particular side. सेम टू सेम केस जिसे अपन ने मिरर में किया था, अभी अपन C1 पे से आगे शिफ्ट होते हैं. नाउ वी आर बिटवीन C1 एंड F1. सो वी आर बिटवीन C1 एंड F1. अब जब यहां पर होंगे फिर से एक रे को पैरेलल बनाओगे. अगेन इफ यू वांटेड यू कैन पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, बट इस बार जो आपकी इमेज बनेगी दैट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड व्हाट, C2. सो लेट्स सी, बिटवीन F1 एंड C1, बियॉन्ड C2. तो अब जितना जितना पास में आते जा रहे हो, इमेज F2 से उतना उतना दूर होते जा रहे हैं. That's simple. Beyond C2, it is enlarged and it is real and inverted as usual. But अब आप वापस कहां पर आ गए हो, फोकस पे. Whenever the object is on focus, आपको मालूम है लाइट रेज कैसे बनेंगी, इन्फिनिटी पे. कैसे, आप ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर से एक लाइन को पैरेलल करोगे, ये रे ऐसे जाएगी फोकस से पास करती हुई, यहां से एक और रे से ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है, उसको भी पैरेलल बना देना. एंड दिस इज गोइंग टू बी द एट इंफिनिटी. सो एट F1 यदि आपने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी पे.
and what is it is going to be? It is going to be highly enlarged. इसके पहले का क्या था? Enlarged, बड़ा, and then real and inverted as usual. But now there is no more position. अब एक ही पोजीशन बचती है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. So whenever you are going to move from F1 to O, जब इसके बीच में आओगे, याद करो मिरर में क्या हुआ था? इस बार इमेज यहां जाने के बजाय वर्चुअल यहीं बन जाएगी. So it is going to be make virtual and erect. अभी तक क्या बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड. अब की बार ये इमेजेस इसी तरफ बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. That's all is the position for convex lenses. So let's summarize without seeing the board. If the object is at infinity, image is at focus. If the object is beyond C1, something over here, beyond C1, the image is going to be exactly in between somewhere F2 and C2. If the object is placed on C1, image is going to be on C2. If the object is going to go ahead of C1 and in between F1, C1 and F1, then the image is going to be beyond C2 and of course enlarged. If the image is going to be on F1, sorry, the object is going to be on F1, the image is going to be parallel. Where? क्यों? बिकॉज यदि आपने ऑब्जेक्ट कोई F पर रखा है तो जो इमेज जाएगा वो एट इन्फिनिटी पर बनेगा, पैरेलल. इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 and O, then image is not going to become at this side, it is going to come at this side, it is going to be virtual and erect. So that's the only position where convex lens is going to give you virtual and erect. So that's all with the part of convex lenses, guys. Do see the diagrams for this part. Now let's move on to the image formation by concave lenses. So what is concave? A doubly side concave. Correct? इस साइड से भी cave, इस साइड से भी cave. It is a diverging lens. So again दो ही केस, उसमें भी याद करो दो ही केस थे. If the object is at infinity, इस बार कोई भी इमेज यहां नहीं जाएगी, कहां पर बन जाएगी? At focus. So if the object is at infinity, parallel लें, then ये यहां पर नहीं जाएगा, लाइट बैक ट्रेस करेगी एंड इस पार्ट पे. सो आपके आईज को लगेगा कि इमेज यहीं बन रही है. सो इट इज एट F1, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज. Since it is being made on this side, it is going to be virtual and erect. Got it? Now, अब उसके बाद में आप कोई भी पोजीशन ले लो, anywhere between infinity and the optical center, any position whatsoever you feel like, it is always going to be between F1 and the optical center. तो optical center और F को वो क्रॉस नहीं करेगी, उसके बीच में ही रहेगी. It is going to be diminished and as usual virtual and erect. So while convex lens is always going to give you real and inverted images, concave lens is always going to give you virtual and erect. इसके पहले टॉपिक में याद करो, मिरर्स के अंदर whenever we were talking about the word concave mirror, they were always giving you real and inverted, and convex mirror was always giving you virtual and erect. Exactly opposite, same. Okay, ये भी हो गया. So I told you what is convex and what is concave. Let's now move on to mirror. के अंदर हम लोगों ने mirror formula बताया था. लेंस में कौन सा formula होगा? Which is known as lens maker's formula. What is lens maker's formula? Very simple. Power. What is power? Power of the lens can be defined as the reciprocal of the focal length. जितना भी उसका focal length होगा उसका reciprocal. So power should be equals to 1 by f. What is 1 by f? Power. What is the unit of power? Dioptry. D. So 1 upon f, it should be equals to 1 upon v minus 1 upon u. मिरर में क्या था? 1 upon v plus 1 upon f. केवल साइन का डिफरेंस है. P equals to 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u. So simple. Magnification याद करो, वही सेम. M is equals to height of the image upon height of the object. It is also equals to, मिरर में था minus v upon u, लेंस में होगा simple v upon u. That's all. What are the sign conventions? As usual, the same sign conventions. To the right, positive; to the left, negative; to the up, positive; to the below, negative. That's all.
So what we are going to do tomorrow? We are going to do tomorrow is, first of all, we are going to start with certain numericals on this power. We are also going to start some numericals on optical benches, and then when we have done around 7 and 8 numericals, then we are going to move to human eye. Okay. See you guys. Enjoy. Bye bye. Take care.